हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? सो टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर क्रैश कोर्स पार्ट, एंड इन दैट पार्ट we are starting our plant physiology, and in that plant physiology chapter number 11, that is the most important, most conceptual, most logical chapter, that is called transporting plants. Okay, so without wasting time, directly we will start our topic. Okay, so in transporting plants, my dear friends, first of all we will start the topic that is called means of transport. Okay, so let's start with the topic means of transport. Means of transport. Okay, so in means of transport, my dear friends, basically there are two types of transport, that is short distance transport and long distance transport. Okay, in short distance transport, what happens if molecules are moving from one cell to another cell, okay, or from one tissue to another tissue, so it is called short distance transport. And as far as long distance transport, we can consider, suppose water and minerals are absorbed by root, so the absorbed water, that is by root, so that absorbed water is transported from root to stem to leaf, it is called long distance transport. So this long distance transport is conducted by xylem, and obviously suppose food is synthesized in leaf, that synthesized food is transported from leaf to root, leaf to stem, so it is again called long distance transport. Okay, so long distance transport generally occurs from organ to organ. For that we need a specific system, that is obviously we are going to learn further in this chapter. First of all, we will learn short distance transport from cell to cell, even from internal cell. Internal cell means, you can say, my dear friends, suppose this is a cell, this is another cell, and suppose I have to transport some molecule from here to here. So it is again an example of short distance transport. And suppose I have to transport some molecules from here to here. So it is again called short distance transport. Okay. Okay. Another example which is given in your NCERT. Suppose you know the structure of leaf, that is lower epidermis and upper epidermis. So this is the epidermis of the leaf. Let us assume that this is lower epidermis of the leaf, and in this lower epidermis we do have these kind of cells. So the water molecules are oozing out from this region, from here to here, from here to here. So it is again called short distance transport. So these are the enough examples of short distance transport. You can say internal cell, within the cells, from one cell to another cells, and this is called short distance transport. So my dear friends, we have three types of this short distance transport, and these three types you know very well. First is simple diffusion, the second one is facilitated diffusion, and the third one is active transport. Yes, my dear friends, so we are starting this three topics. Okay, so just focus here. We'll start with simple diffusion. Okay, so it's very easy examples. In simple diffusion, what happened, my dear friends? The molecules are moving from a region of their higher concentration to a region of the lower concentration. It's very easy to understand. अगर एक कोने में आप धूप जला रहे हो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कुछ धूप यहाँ पे जलाई हुई है, तो यहाँ पे उसके मोलिक्यूल ज़्यादा है. यहाँ ये रूम के कोने में मोलिक्यूल्स है ही नहीं, तो यहाँ पे मैं जला रहा हूँ, तो धीरे धीरे यहाँ से वहाँ वहाँ मूव करेंगे. So these molecules are moving, this gaseous molecules are moving from a region of the higher concentration to lower concentration. So it is called diffusion, and this is called simple diffusion. And you can understand the characteristic of simple diffusion, that we don't need energy, we don't need ATP. Energy हमें यहाँ पे use करने की requirement नहीं है, ATP हमें use करने की requirement नहीं रहेगी. So that is called simple diffusion. If water molecules are moving from from its higher concentration to lower concentration, but keep in mind that in this case there is no
involvement of semi-permeable membrane. I'm talking about simple diffusion. Okay, so very easy examples. Again, यहाँ पे जो मैंने examples लिए, that is you can consider a simple diffusion within the cell from one cell to another cell. Okay, तो higher concentration to lower concentration, so it is considered as simple diffusion. Okay, so in simple diffusion we can say the maximum rate यहाँ पे किसका होगा? Yes. Then water. Then सॉलिड का थोड़ी ना, सॉलिड थोड़ी डिफ्यूज करता है. सो कीप इन माइंड दैट सॉलिड जो है वहाँ पर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है. ये सॉलिड, ओके, इसके अंदर मैं डिफ्यूजन करवा सकता हूँ, बट इसका खुद का थोड़ी ना डिफ्यूजन होगा. सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है. द रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैस देन इन लिक्विड. ओके, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होगा, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होने वाला है. ओके, दिस ऑल lines, these all concepts are given in your NCERT. So next topic हमारा होगा after simple diffusion. Second part is facilitated diffusion, which is the most important part. So just focus here, my dear friends. Facilitated diffusion. Okay, so in facilitated diffusion what happens? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे हम हेल्प लेंगे किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की. वी नो चैप्टर नंबर 8 सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वी हैव लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन. यस, वो जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 के अकॉर्डिंगली, वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज आई हैव concluded that we have 3 types of short distance transport, that is simple diffusion, facilitated diffusion, and the third one is active transport. Out of this 3, this facilitated diffusion is one of the most important. जो भी MCQs वगैरह आएंगे, जो भी concepts आएंगे, वो maximum कहाँ पे आने वाले हैं डॉक्टर्स? facilitated diffusion में आने वाले हैं. So let's start this facilitated diffusion. In facilitated diffusion what happens? We are going to talk about this semi-permeable membrane. So we know that semi-permeable membrane. What is semi-permeable membrane? In this structure of semi-permeable membrane, we can include like this kind of lipid bilayer. We know that this is lipid bilayer. In between lipid bilayer, we have some proteins. तो मैं एक साथ पहले लिपिड बाइलेयर आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एंड देन इन बिटवीन हम लोग यहाँ पे क्या रखने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं प्रोटीन्स. तो प्रोटीन्स कैसे हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करेंगे, वही हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है. ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ पे किस तरह से काम हो रहा है. बोर्ड वर्क पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे आप, ये जितना ज़्यादा यहाँ पे बोर्ड वर्क पे ध्यान रखोगे, उतना ही यहाँ पर पढ़ने में ज़्यादा मजा आने वाला है. ओके, सो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन. चलो ये प्रोटीन ड्रॉ कर दिया, तो हम थोड़े से लिपिड बाइलेयर ड्रॉ कर लेंगे. फ्यूचर डॉक्टर्स, ओके, तो इस तरह से कुछ है. थोड़ा सा इसको हम, हाँ अभी ठीक है, यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली. तो इस तरह से है. तो काम शुरू करते हैं. कैसे डिफ्यूजन हो रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे डिफ्यूजन कराना है किसी आयंस का, सो आयंस का अगर मुझे डिफ्यूजन करवाना है, सो दिस लिपिड बाइलेयर इन प्रोटीन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ध्यान रखो, लिपिड बाइलेयर इज इम्परमिएबल फॉर दिस आयंस. लिपिड बाइलेयर जो है वो आयंस के लिए इम्परमिएबल है. तो लिपिड में से क्या पास आउट होगा? लिपिड में से पास आउट होंगे ऑल दोज मोलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल इन लिपिड, एंड ऑल दोज मोलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर्ड एज हाइड्रोफोबिक. आई एम श्योर you heard this word, these 2 words, hydrophobic and hydrophilic. Okay, so the molecules which are hydrophobic are always passing through lipid bilayer, and the molecules which are hydrophilic, filling, जिसको वाटर के लिए फिलिंग है, वाटर के लिए लव है, ऐसा याद रख सकते हो, किसी को कहना नहीं है ऐसा, ठीक है. तो वाटर लविंग माने हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल्स आर ऑलवेज
passing through this proteins because these molecules are impermeable from this lipid bilayer. So doctors, क्या हो रहा है यहाँ पे, लिपिड बायलेयर्स में से लिख लो ये पॉइंट्स लिख लो आप. जो लिपिड बायलेयर है वहाँ से क्या पास आउट नहीं हो सकता है, आयंस, बिकॉज आयंस आर हाइड्रोफिलिक. तो लिपिड में से क्या पास आउट होगा, जो भी हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल्स है. लाइक हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल्स में एग्जांपल क्या आएंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. नो डाउट एनसीईआरटी में भी ये जो चैप्टर है उसमें ये सब टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, बट एक एंटायर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए. तो आयंस, फॉर आयंस दिस लिपिड बायलेयर इज इम्परमीबल. तो अगर मुझे आयंस पास आउट करने हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, मुझे हेल्प किसकी लेनी रहेगी, मुझे हेल्प लेनी रहेगी प्रोटीन्स की. ओके, तो प्रोटीन्स के रिगार्डिंग अगर बात करें तो दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन. आगे भी प्रोटीन ड्रॉ करने वाले. तो क्या हो रहा है, दिस प्रोटीन एक्ट एज, ध्यान रखो यहाँ पे बेटा, दिस प्रोटीन एक्ट एज क्या हो रहा है, आयन चैनल्स. प्रोटीन एक्ट एज आयन चैनल और इट ऑल्सो एक्ट एज वोल्टेज गेटेड आयन चैनल. तो दिस बोथ आर सेम, दिस बोथ कैन परमिट आयंस टू मूव अक्रॉस. तो आप पूछोगे सर अगर दोनों सेम है तो दोनों में फर्क क्या पड़ेगा. मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स लिखा है वोल्टेज गेटेड, तो गेट से दिस आयन चैनल्स आर ऑलवेज ओपन. ये क्लोज रहेगी जब आयंस पास आउट होंगे तब ये ओपन होगी. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में ये टॉपिक हम ज्यादा पढ़ेंगे. फिलहाल याद रखो कि यहाँ पे आयंस पास आउट होने वाले. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आयंस यहाँ पे जो पास आउट होने वाले हैं वो ऑलवेज जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माने फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. सपोज मेरे पास ये आयंस है तो आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे माने आउटर साइड मोर कंसंट्रेशन है. तो दिस आयंस आर मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर माने फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ये पहला पॉइंट हो गया, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दैट आयंस आर ऑलवेज मूविंग फ्रॉम प्रोटीन आयन चैनल. they are moving from point लिखते रहिए, they are moving from their higher concentration to lower concentration. okay, अब क्या हो रहा है, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ से मुझे Na प्लस या Cl माइनस कोई एक स्पेसिफिक आयन, आप सोच लो कोई भी, वो यहाँ से पास आउट हो रहा है. ऐसे दिस आयन चैनल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन ऐसे कितनी होगी जो सोडियम को परमिट कर रही होगी, बहुत सारी, थाउजेंड्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ऐसी 100 है. हालांकि मैंने यहाँ पे 3 या 4 ड्रॉ करी हुई है. आप ऐसा मानो कि ये स्पेसिफिक सोडियम को पास आउट करने के लिए ऐसे आयन चैनल 100 है. तो सभी 100 आयन चैनल्स एक साथ काम पे लगी हुई है. ऑल दोज 100 आयन चैनल्स विच आर एबल, विच परमिट द मूवमेंट ऑफ सोडियम फ्रॉम here to here, from their higher concentration to their lower concentration, from outer side to inner side. वो एक साथ काम पे लग जाएगी तो क्या होगा, इट बिकम्स सैचुरेटेड. सैचुरेटेड पिज्ज़ा खाना है, 3 पीस खा ली, अभी भी 14 पीस की जगह है हमारे में. तो जैसे ही 5th अच्छा दबा के 5th पीस हमने खास लिया तो नाउ यू आर सैचुरेटेड. यहाँ तक आ गया है. कई लोगों का तो यहाँ तक आ जाता है क्योंकि वसूल करना होता है अनलिमिटेड जोन में, जोक सपाट. बट जितने सोडियम यहाँ पे आने थे वो आ गए. तो एक कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान में रखो, दैट इट बिकम्स सैचुरेटेड. दिस वर्ड्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इट बिकम्स सैचुरेटेड. ओके, अगर ये सैचुरेटेड है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर ये सैचुरेशन यहाँ पे हो गया है तो ये रीजन में यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉल्ड क्या लिखा, बोले तो क्या लिखा, इनहिबिटर. तो पॉइंट लिखो आप लोग दैट दिस इज सेंसिटिव अगेंस्ट इनहिबिटर्स. तो मतलब सैचुरेशन जैसे हो गया, जितने मुझे मोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे मोलिक्यूल्स यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं. नाउ
अगर ये प्रोसेस मुझे स्टॉप करनी है तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनहिबिटर आ जाएगा। तो पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दिस इज सेंसिटिव अगेंस्ट इनहिबिटर्स। तो याद रखो पॉइंट्स फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फॉर पर्टिकुलर दिस पॉइंट व्हेनेवर यू आर कंसर्न विद आयन चैनल प्रोसेस occurs from higher concentration to lower concentration, protein ion channel माने protein molecules are involved, then no energy required because process occurs from higher to lower. आप gradient according to concentration gradient जा रहे हो, तो यहाँ पे you don't need ATP saturation and it is sensitive against inhibitors. This all points are given in your NCERT, तो ध्यान में रखिए आप। ओके सो एक पॉइंट इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपने क्या याद रखा, दैट इज अबाउट आयन चैनल। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन आयन चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। चलो नेक्स्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। सपोज ये पॉइंट्स है, सपोज ये हमारे प्रोटीन्स है, तो ये जो प्रोटीन्स है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, ये प्रोटीन्स, दिस प्रोटीन एक्ट एज द वर्ड व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, इट इज कॉल्ड क्या लिखा, एक्वापोरिन्स, पोर्स, पोरिन्स वर्ड एक्चुअली यहाँ से आएगा। ऐसे पोर्स कहाँ पे है, गिवन एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी इज एक्वापोरिन्स आर जनरली प्रेजेंट इन, एग्जांपल याद रखते रहो आप लोग, बैक्टीरिया, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया के जो लेयर्स है वहाँ पे ये पोरिन्स होते हैं। ये पोरिन्स क्या है मैं समझाता हूँ आपको। दिस पोरिन्स आर एक्चुअली लार्जर प्रोटीन्स। आप ऐसा मान के चलो कि चलो यहाँ पे एग्जांपल ले, दिस इज द पोरिन्स, ये पोर्स है, दिस आर मेड अप ऑफ लार्जर प्रोटीन्स, दिस आर मेड अप ऑफ लार्जर प्रोटीन्स। आप इसको ध्यान में रखो, दिस आर मेड अप ऑफ लार्जर प्रोटीन्स। सो ये जो लार्जर प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, ये लार्जर पोरिन्स हो गए, लार्जर प्रोटीन्स हो गए, विच इज कॉल्ड पोरिन्स। लार्जर प्रोटीन्स से बने हुए हैं विच आर कंसिडर्ड एज पोरिन्स। पोरिन्स पोर्स है, दे विल अलाउड स्मॉलर साइज्ड प्रोटीन्स, PR मैं लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन्स। सो दे विल अलाउड प्रोटीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, सिंपल। सो दैट इज रिगार्डिंग टू विच पॉइंट, पोरिन्स, एक्वापोरिन्स। अच्छा पोरिन्स के रिगार्डिंग आपको एग्जांपल याद रखना है, बैक्टीरिया है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एक्वा, एक्वा फ्यूचर डॉक्टर्स, एक्वा गार्ड, जो एक्वा वाटर को गार्ड करता है उसी को क्या कहते हैं, एक्वा गार्ड। तो डॉक्टर्स जो एक्वा जो है वो, इसको ले लो, ये प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये अलाउ क्या करेगा, एक्वा को अलाउ करेगा। सिंपल सी बात है, किसको अलाउ करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O को अलाउड करने वाला है। सो अब तक की समरी, एक ये आयन चैनल, द सेकेंड वन इज एक्वापोरिन्स, दिस इज कॉल्ड पोरिन्स, एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिक्टेट किए हुए हैं। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे एग्जांपल्स हमारे पास बहुत से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वन मोर पार्ट, अगेन दिस इज, ये क्या है, बोलो दो, बोलो बोलो बोलो, यस प्रोटीन्स ही है। ओके तो ये प्रोटीन्स में अगेन लिपिड बाइलेयर, इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ पे भी, जाना तो हमें कहाँ पे, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यही रूल है दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर। तो फ्यूचर डॉक्टर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है जगह, लेट अस टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं कि यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स है वो अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे अटैच हो गए और ये पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा। यस यहाँ पे मोलिक्यूल्स अटैच हो गए, पूरा का पूरा घूमेगा और यहाँ पे छोड़ देगा। अगेन 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 डॉक्टर्स, प्रोसेस अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो अभी जो मोलिक्यूल यहाँ पे है, ये प्रोटीन जो जब ऐसा घूमेगा, टर्न देगा, 180 डिग्री टर्न देगा, तो वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, ये मोलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इसके बाद का अगर हम पिक्चर अज्यूम करें तो ये जो है वो यहाँ पे आने वाला है और फिर वहीं से रिलीज हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी ऐसा कुछ सिचुएशन पॉसिबल है, ये क्या है बोलो तो भाई, हाँ इनहिबिटर्स है। तो यहाँ पे भी डॉक्टर्स कौन सा पिक्चर पॉसिबल है,
यस यू आर राइट, यहाँ पे भी क्या पॉसिबल है, इनहिबिटर्स आर पॉसिबल, यस दैट इज कॉमन फॉर ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो वहाँ पे भी वी डू हैव इनहिबिटर्स, वी डू हैव इनहिबिटर्स। तो अलग अलग ये पूरा का पूरा जितना मैंने समझाया पूरा का पूरा क्या है हमारे लिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही है। ओके तो लास्ट पार्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक साथ 3 पॉइंट हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है। तो 1 2 3 बीच में ऑब्वियसली वी डू हैव लिपिड molecules, yes lipid bilayer, ये बहुत ही इजी है। लास्ट पार्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज देयर इजी। तो क्या है यहाँ पे, क्या समझना है, 3 मैंने लिपिड के आपके सामने ड्रॉ कर दिए हैं। तो मैं ड्रॉ करने से ही आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल आएगा इस तरह से, दूसरा एग्जांपल आएगा यहाँ पे, तीसरा एग्जांपल आएगा यहाँ पे। सिंपल, व्हेन मूवमेंट ऑफ ओनली वन मोलिक्यूल इट इज कॉल्ड क्या आएगा, यूनिपोर्ट, yes it is called uniport. When movement of 2 molecules it is called co-transport. इसको हमने क्या नाम दिया डॉक्टर्स, यूनिपोर्ट। दोनों को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे co-transport. Co-transport means movement of 2 molecules simultaneously, but whenever we are concerned with the movement of 2 molecules, the direction of these 2 molecules is either parallel or opposite. Yes, if it is parallel it is called symport, if it is in opposite direction it is called antiport. Okay, so summarized part अगर देखते हैं, देख लो आपके सामने एक सबड़ी, ये पूरा का पूरा जो आपके सामने है that is considered as facilitated diffusion. तो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिक्टेट करवा दिए, आप लोगों ने होपफुली नोट डाउन कर लिए हैं। तो ओके दिस इज समथिंग अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स एक्टिव डिफ्यूजन विच इज द मोस्ट इजी टॉपिक। ओके तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लेंगे, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहा, बिकॉज वी नीड एनर्जी, एटीपी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब रहेगी, सपोज वही एग्जांपल पुराना वाला, ये क्या आएगा हमारे पास प्रोटीन, एंड लेट अस अज्यूम के आसपास ये क्या है, लिपिड बाइलेयर्स हमारे पास तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लोअर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, वी आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, माने टुवर्ड्स कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे क्या से क्या होगा, यहाँ से हम ये डायरेक्शन में मूव करेंगे। सिंपल, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके तो पॉइंट क्या है, हायर कंसेंट्रेशन टू सॉरी लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन against concentration gradient, ATP is required, yes ATP is required। तो यहाँ पे भी आपका सवाल क्या होगा, आपका सवाल होगा सर यहाँ पे भी इनहिबिटर्स है, yes यहाँ पे भी सैचुरेशन है, yes कॉमन पॉइंट। ऐसे आप सोच लो 1000 है, एक साथ ये 1000 काम पे लग गए तो आगे क्या होगा, yes सैचुरेशन। और अगर सैचुरेशन हो गया तो यहाँ पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ऑलरेडी अटैच होने वाला है, यहाँ पे अटैच होने वाला है inhibitors। ओके सो दैट इज समथिंग अबाउट इनहिबिटर्स, इस तरह से होगा। ओके तो ये जो अब तक का पॉइंट हुआ, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। ओके सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज
बहुत ही इजी टॉपिक बट बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक। वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, साथ साथ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ऑस्मोसिस, साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे टर्जिडिटी। अगर ऑस्मोसिस की बातें हो रही है तो बातें होगी वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्जिडिटी की बातें हो रही है तो यहाँ पे बात होगी टर्गर प्रेशर। वाटर पोटेंशियल की बातें कर रहे हैं तो बहुत ही एक कंसेप्चुअल अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छा खासा चैप्टर का ये पोर्शन है। यू कैन से दैट दिस पार्ट इज द यू नो व्हाट वी कैन से इट इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर, हार्ट ऑफ द चैप्टर। पूरे चैप्टर में अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो जो भी कंसेप्ट आपको मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी मिलेगी वो टर्मिनोलॉजी यहीं पे आने वाली है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है क्या नहीं। टू स्टार्ट विथ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, चलो सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा कंसेप्ट होता है ऑस्मोसिस में। डेफिनेशन सिंपल है ऑस्मोसिस की कि वाटर मोलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर concentration to region of the lower concentration, but here we can understand that semi-permeable membrane or we can say selectively permeable membrane according to your NCERT is required. Okay, again I'm repeating the definition that water molecules are moving from a region of their higher concentration to a region of their lower concentration, okay, through semi-permeable membrane or according to NCERT selective permeable membrane. So this is called osmosis. Very easy to understand. तो अगर ऑस्मोसिस को समझना है तो ऑब्वियसली वी आर कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। वही मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स को समझने के लिए एक और कंसेप्ट हम साथ में समझेंगे, दैट इज वाटर पोटेंशियल। ओके, तो वाटर पोटेंशियल जो है फ्यूचर डॉक्टर्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी इट इज डिनोटेड बाय साई। जो कुछ यूनिट्स वगैरह दिए हुए मेगा पास्कल एवरी पार्ट्स वो देखना है, इट्स इजी, वो याद रखना है हमें। बाकी वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई, एंड वाटर पोटेंशियल है तो साई डब्ल्यू। वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज साई एस प्लस साई पी, साई एस प्लस साई पी। तो साई एस इज जनरली नोन एज solute potential, while psi p is known as प्रेशर पोटेंशियल। ये सब क्या है सर, कितने टर्म्स आ रहे हैं? हाँ, तो अभी यही तो समझना है, पहले टर्म्स के नाम तो सुनो। अभी इसमें ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैं बोलूँगा, अभी यहाँ पे टर्गर प्रेशर समझना है, अभी आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है, वॉल प्रेशर समझना है, बहुत कुछ समझना है ये टॉपिक में। तो शुरू करें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। अगर ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ लेते हो, पूरा चैप्टर के एमसीक्यूज आराम से आपको आने वाला है। खास इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एग्जाम्पल्स मैं अभी देने वाला हूँ इसी लेक्चर में, ऑल दोज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, ऑब्वियसली दिस एग्जाम्पल्स आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। ओके, तो जस्ट रिकॉल ये जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं उसको दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर दो, प्रॉपर्ली याद रखो, ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगा। वहाँ पे रट्टा काम नहीं आएगा कि हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर में वाटर मोलिक्यूल की मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, टर्गर प्रेशर में यहाँ के वाटर पोटेंशियल नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं लगेगा। आपको जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अभी मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो आपको थोड़ी याद रखने पड़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। जनरली सॉलिड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन सी वाटर पोटेंशियल, वी आर कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ वाटर। ओके, तो सॉलिड पोटेंशियल जो है ऑब्वियसली नाम से पता चलेगा, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। वाटर प्रेशर पोटेंशियल जो है इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर, दिस डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है हमें। बेसिकली वाटर पोटेंशियल के बारे में मैंने क्या बताया था, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। सपोज फ्री मोलिक्यूल्स है वाटर के, ओके, लेट अस एग्जांपल के 1 लाख फ्री वाटर मोलिक्यूल्स है जहाँ पे मैंने सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया है। 1 लाख फ्री वाटर मोलिक्यूल्स है, तो ये वाटर मोलिक्यूल्स के वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, मैक्सिमम। वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल माने मूवमेंट ऑफ वाटर, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मैक्सिमम। रेट ऑफ वाटर पोटेंशियल कब ज़्यादा होगा, रेट कब ज़्यादा होगा, जब वहाँ पे सॉलिड्स मैंने ऐड नहीं किए हैं तब। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो 1 lakh water molecules which are free, so for this case we can say amount of water potential
Okay, value, not amount, value of water potential is maximum, and in biology this maximum value of water potential is considered as 0. अगर मैं 0 लिख रहा हूँ इट मीन्स कि वहाँ पे वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है. वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब है? जब वहाँ पे मैंने सॉल्यूट बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है. अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो वहाँ पे वाटर पोटेंशियल आप ऐसा मान के जा सकते हो मैक्सिमम है. मैक्सिमम है मतलब कि कैसा? 0 है. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूट्स ऐड कर, चलो मैं NaCl मैंने वहाँ पे ऐड कर दिए, तो क्या हुआ? वहाँ पे जो फ्री वाटर मोलिक्यूल्स है उसकी कंसेंट्रेशन का अमाउंट जो है, कंसेंट्रेशन जो है डिक्रीज हुआ. तो अमाउंट जो वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल भी वो डिक्रीज हुआ क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐड क्या किया हुआ है? सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है. यस 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 यस, सही समझ रहे हो आप? ओके, तो वही पॉइंट्स यहाँ पे हम डिटेल में लेने जा रहे हैं. पॉइंट आपको ध्यान में रखने, सॉलिड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एंड प्रेशर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर. ओके, यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी के साथ. फ्री काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज ऑब्वियसली वाटर पोटेंशियल. जितने फ्री वाटर मोलिक्यूल ज़्यादा होंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा. ओके, तो दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे. साथ साथ ये सारे टर्म्स है वो हम समझने में आगे बढ़ेंगे. तो पहले मैं शुरुआत करूँ ऑस्मोसिस. उसका NCERT में बहुत सिंपल सा बेसिक सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. वो एक्सपेरिमेंट से मैं काम शुरू कर रहा हूँ. एक्सपेरिमेंट इज अबाउट कौन सा है? कौन सा है? यस, कौन सा है? थीसल फनल एक्सपेरिमेंट. जो थीसल फनल एक्सपेरिमेंट है मैं वहीं से काम आगे कर रहा हूँ. चलो तो ध्यान रखो. तो थीसल फनल एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा? फ्यूचर डॉक्टर्स, एक हम बीकर ले लेते हैं. ओके, और ये जो बीकर है उसके अंदर हम रखेंगे यहाँ पे थीसल फनल. ये हम लोगों ने रख लिया यहाँ पे थीसल फनल. ओके, तो बीकर जो है यहाँ पे ऐसा मान के जा सकते हो कि हम लोगों ने बीकर में यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल्स फिल कर दिए हैं. ब्लू कलर के, पर्पल कलर के, आज ब्लू है पानी पानी, तो क्या है सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट ही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे? वाटर मोलिक्यूल्स ही है, माने कि H2O, ये H2O है, फ्री वाटर मोलिक्यूल्स रहता है. यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट मैंने ऐड, कोई भी सॉल्यूट ऐड बोले तो किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, किया है, नहीं किया है. फ्री वाटर मोलिक्यूल्स है. एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि चलो 1000 वाटर मोलिक्यूल्स है यहाँ पे, और ऑल दोज फ्री वाटर, ऑल दोज 1000 वाटर मोलिक्यूल्स आर फ्री. वी हैव नॉट एडेड एनी सॉल्यूट्स लाइक NaCl और शुगर और व्हाटएवर. ओके, सो वी कैन कंसिडर दिस एज सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, डिस्टिल्ड वाटर है. तो यहाँ पे आप ऐसा मान के जा सकते हो कि वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल साइन W इज मैक्सिमम एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज 0. ये पॉइंट ध्यान में रखोगे आप लोग खास. वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कैसी है? मैक्सिमम है, 0 है. जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करेंगे वो बन जाएगा नेगेटिव, माने वो वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. ओके फाइन. तो ये बात हुई बीकर की. थीसल फनल में हमने क्या किया हुआ है? थीसल फनल में हमने ऐड किया हुआ है सॉल्यूशन, माने वाटर मोलिक्यूल्स तो वही, साथ साथ आप समझोगे कुछ अमाउंट में, से फॉर एग्जांपल 5 ग्राम हमने यहाँ पे NaCl ऐड किया हुआ है. तो ये हो गया हमारा थीसल फनल. ये हो गया. क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट्स और वाटर तो है ही, ब्लू है, पानी पानी पानी. तो यहां तक की जो सरफेस है, लेट अस टेक सरफेस इज x. अभी प्रोसेस शुरू हुई नहीं हुई, मैं सरफेस को बोल रहा हूं, दिस सरफेस इज कंसीडर्ड एज x. ओके, तो दिस इज, ये क्या होगा? ऑब्वियसली सॉल्यूशन, माने सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. देखो चलो H2O भी है यहाँ पे और सॉल्यूट भी है. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कितना ऐड किया हुआ है? सॉल्यूट 5 ग्राम मैंने ऐड किया हुआ है. तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली डिक्रीज होगी. ओके, दोनों जो मेरे सॉल्यूशंस है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ये मेरा सॉल्यूशन है,
दोनों को मैंने सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कई कई जगह पे आपको वर्ड मिलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इजी है ना यार। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विल अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर ओनली, and selective permeable membrane will allow the movement of water as well as some solutes. They are allowing some selected solutes, that's why the name selective permeable membrane। तो आपकी NCERT आपको ये कह रही है कि भाई ये क्या है, यहाँ पे selective permeable membrane है। ओके, तो selective permeable membrane में वाटर की मूवमेंट भी होगी प्लस सॉल्यूट की मूवमेंट भी होने वाली है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिए वाटर मोलिक्यूल्स, मैंने पहले बताया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। वाटर मोलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इज मोर हियर इन सॉल्वेंट। तो वाटर मोलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम बीकर टू थीसल फनल और टू थीसल फनल टू बीकर, ऑब्वियसली फ्रॉम बीकर टू थीसल फनल। तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करने वाले हैं टू दिस सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यस, इसको क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो आफ्टर ऑस्मोसिस लेट अस कंसीडर दिस सरफेस एज y। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं y तक। सो दिस x y जो डिफरेंस हमें नजर आया, इट इज कंसीडर्ड एज, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ गए? फ्रॉम बीकर टू थीसल फनल गए, अंदर की तरफ गए। सो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? एंडोऑस्मोसिस। आगे हम प्लाज्मोलिसिस समझेंगे, तब हम एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस दोनों कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिलहाल जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करें फ्रॉम अ रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, एंडोऑस्मोसिस मैंने वर्ड आपको समझाया। एक्सोऑस्मोसिस के बारे में भी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ टर्म्स मुझे समझनी पड़ेगी, कुछ टर्म मुझे यहाँ पे समझानी है। मुझे क्या करना है मुझे यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना, उसको स्टॉप करनी है। आई वॉन्ट टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। To stop the process of osmosis, what I have to perform? What I have to apply a specific pressure. See, अगर मुझे ये प्रोसेस स्टॉप करनी है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, ध्यान से सुनना, दोनों रास्ते। एक, मैं यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूँगा। दूसरा, मैंने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ, तो मैं वहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्यूट हम अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? प्रोसेस ऑलरेडी स्टॉप हो जाएगी। ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक इक्विलिब्रियम हो जाता है तब तक। यहाँ पे जैसे मैंने 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, सपोज मैं यहाँ पे 5 ग्राम ऐड कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली प्रोसेस क्यों होगी? क्योंकि दोनों तरफ जो फ्री वाटर मोलिक्यूल्स वो सेम हो जाएंगे, तो ऑस्मोसिस ऑटोमेटिकली स्टॉप होने वाला है। तो ये एक रास्ता, बट वो अभी मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं दूसरा रास्ता अभी अप्लाई करूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई किया, सपोज ये प्रेशर जो अप्लाई किया है, ये प्रेशर है यहाँ पे कितना है? 5 Newton, एंड दिस प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान में रखना। तो क्या हुआ यहाँ पे कि भाई वाटर मोलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम सॉल्वेंट टू दिस एरिया, तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेशर आई कैन कंक्लूड दैट प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स। सो दिस प्रेशर इज नोन एज, ऑब्वियसली क्या कहेंगे इसको आप? यस, इट इज कंसिडर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज कंसिडर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक पॉइंट दिमाग में आ गया। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी कंसेप्चुअल लॉजिकल पॉइंट्स है ना, वहाँ पे मैं लेक्चर में यहाँ को हैशटैग दूंगा। तो हैशटैग का मतलब आपको समझ लेना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट्स है। नीट की एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है।
ओके, तो हैशटैग में आप लोग लिख लोगे दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट को हम रिलेट करेंगे वाटर पोटेंशियल के साथ, ध्यान में रखो। चलो वाटर पोटेंशियल के बारे में क्या बताया, डिपेंड्स अपॉन फ्री वाटर मोलिक्यूल्स। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, तो यहाँ पे फ्री वाटर मोलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, मैक्सिमम माने कि जीरो, मैक्सिमम यानी कि जीरो। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, बोलो चलो, इससे कम या ज़्यादा, हायर लोअर, ऑब्वियसली लोअर, बिकॉज यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल के साथ आप लोगों ने क्या ऐड किया हुआ है, ऑब्वियसली सॉल्यूट भी ऐड किया हुआ है। सो दैट amount of, due to those amount of solute, decreased value of water potential is known as solute potential। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझाना होगा, चिंता मत करो, एग्जाम्पल अलग में लेने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये बीकर मेरे पास, ये बीकर में मेरे पास ये वाटर मॉलिक्यूल से आप ऐसा समझ लो, ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि अभी ये जो 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे मैक्सिमम है, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे जीरो है। राइट नाउ अभी सिचुएशन यहाँ पे ये है, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे मैक्सिमम मैंने लिया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड बात, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूट्स एडेड नहीं है, सॉल्यूट्स एडेड नहीं है। कोई भी नॉर्मल रूटीन सिस्टम आप सोचो ना, दुनिया का कोई भी पानी ले लो एक्सेप्ट दैट डिस्टिल वाटर और रेन वाटर, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में सॉल्यूट्स तो है ही, समझ लो आप लोग। तो दुनिया का कोई भी पानी ले लो, उसमें वाटर पोटेंशियल में सॉल्यूट, मतलब कि वाटर में सॉल्यूट्स तो एडेड है ही। तो कोई भी दुनिया का पानी ले लो, उसमें वाटर पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर, नॉट प्रेशर। सपोज ये जो बॉटल है उसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्यूट्स है ही। अब ये आरओ का वाटर है, गंगा जल ले लो या दुनिया का कोई भी पानी ले लो, इसके अंदर सॉल्यूट्स तो है ही। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है आपके घर में, जो आरओ का पानी है या कोई भी पानी है, वहाँ पे सॉल्यूट्स तो है ही। तो व्हाट दैट वाटर, अगर ये मैं पहले रख देता हूँ यहाँ पे, व्हाट दैट वाटर अगर हम कंसिडर करते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया, psi W is always depends upon psi S, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में इसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है। आपके घर में जो पानी है वहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, हाँ, अगर प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो psi P आएगा। अदरवाइज जो यहाँ पे इक्वेशन मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है आपको कि भाई वाटर पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आपके सामने है, ओके, psi S प्लस psi P। बट नेचुरल कंडीशन में मेरे पास psi P है ही नहीं, प्रेशर में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा बेटा, एट दैट टाइम psi W इज इक्वल टू psi S। चलो ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ, ऑस्मोसिस को कैसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे 100 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है, psi W अभी कैसा है, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब मैं यहाँ पे ऐसा मान के जा रहा हूँ कि चलो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट्स। कितना मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 ग्राम सॉल्यूट्स में ऐड कर रहा हूँ, 5 ग्राम सॉल्यूट्स मैंने ऐड कर दिए। तो चलो मैं यहाँ पे सॉल्यूट्स दिखा देता हूँ, ये सॉल्यूट्स मैंने ऐड कर दिए। तो ये सॉल्यूट्स ने किसको पकड़ा, यस, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको पकड़ लिया, जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको पकड़ लिया। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 100 जो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें से 20 फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्यूट्स 5 ग्राम मैंने ऐड कर दी उसके साथ जुड़ गए, अटैच हो गए, ओके। तो अब मेरे पास फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने बचे, ऑब्वियसली 80। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुआ, सॉरी वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि हमने क्या इंक्रीज किया, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एंड दैट डिक्रीज, दैट इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज, यस, सही पकड़े हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, जनरली क्या हो रहा है, वाटर पोटेंशियल psi W इज इक्वल टू psi S व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग प्रेशर। तो क्या होगा, बाय एडिंग द वैल्यू, बाय एडिंग सॉल्यूट्स there is a change in water potential, by adding
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। आप सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करोगे? तो क्या सॉल्यूट को ऐड करके। ओके, तो बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल। इन द चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जैसे आप समझो कि साई W जो है वो कैसा है, 0 है। अभी आपने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो साई W जो है वो 0 नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस में, इट बिकम्स नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू वाटर पोटेंशियल की मिली वो किसकी वजह से मिली? बाय एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज ड्यू टू साइज। माने आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहे हो तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से मेरी बात सुनना, हैशटैग में मैं लिखने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, साइज। मैंने यहाँ पे जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ा रहा हूँ तो मुझे साई एस ऑलवेज 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 कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव मिलेगा। यस, साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। साई एस कभी भी पॉजिटिव। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कोई भी पानी ले लो है ही, तो साई एस की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो साई एस नेगेटिव में कर रहा हूँ, 0 से मैं -1 -2 -3 आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये साई एस का मतलब क्या हुआ, दैट साई एस इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। अब ऐसा मानो कि मैंने यहाँ पे और 5 ग्राम सॉल्यूट्स ऐड कर दिए तो यहाँ पे और फ्री बॉडी मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गए। तो पहले जो 100 थे अब कितने हो गए, 60 हो गए। तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल और डिक्रीज हुआ और साइज की वैल्यू इतनी ही ज़्यादा नेगेटिव हुई क्योंकि मैंने यहाँ पे सॉल्यूट्स ज़्यादा ऐड किए हुए हैं। ध्यान से सुनना, समझना, कंसेप्ट को ईजी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल याद रखो। प्योर वाटर पोटेंशियल 0, दैट इज मैक्सिमम। आप ऐड क्या कर रहे हो, सॉल्यूट्स कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हो तो वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जैसे 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 इंक्रीज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी उसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, नेगेटिव होगी। एज यू आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट पोटेंशियल बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। अगर एग्जाम्पल ले सकते हो तो यहाँ पे साइज में भी -5 होगा, यहाँ पे साइज में भी -10 होगा। ओके, एज यू आर एडिंग मोर एंड मोर सॉल्यूट्स यू आर increasing negative value of solute potential, you are increasing negative value of solute potential। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया था कि ये जो साई एस है वो समझने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये बात कुछ होगी हमारे सामने साई एस की, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं माय डियर डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स। हाँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भी यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है तो यहाँ पे साइज की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे साइज है ही नहीं क्योंकि हमने वाटर पोटेंशियल ऐड किया हुआ है। तो अब तक जो टर्म समझे उसमें आपको सॉल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गया है जो कि नेगेटिव होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया है जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, अब एक और वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड यहाँ पे आएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अच्छा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया, याद करो। चलो, अगर ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस मुझे स्टॉप करनी है, मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा था, यहाँ से प्रेशर अप्लाई करो। दूसरा रास्ता कौन सा था, यहाँ पर मैं सॉल्यूट ऐड करूँ। तो चलो वो दूसरा रास्ता लेते हैं ना। समझो कि मैंने यहाँ पे सपोज सॉल्यूट ऐड कर दिए 5 ग्राम। तो 5 ग्राम अगर मैंने सॉल्यूट ऐड किए हैं तो क्या होगा, प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी क्योंकि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया। ओके, तो ये जो सॉल्यूट मैंने ऐड किए उसी को मैं क्या कहने वाला हूं, दैट इज नोन एज माय ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप बोलोगे सर यार ये तो आपने सॉल्यूट ऐड किए ना, तो अगर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वो तो सॉलिड पोटेंशियल हुआ। यस, यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लॉजिकल फ्रेंड्स। जो मैंने पॉइंट बताया अभी ऊपर वाला ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला, एक वर्ड आपके सामने क्या आया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल
और दूसरा मैंने आपको समझाया सॉल्यूट पोटेंशियल। तो माय डियर डॉक्टर्स, दिस टू आर सेम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होना चाहिए। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड सॉलिड पोटेंशियल आर सेम। अच्छा एक सेकेंड, खतरनाक वाला कंसेप्ट, सॉलिड वाला कंसेप्ट जब आता है यहाँ पे, चलो आपने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, ये प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो क्यों? टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, अब ऑस्मोसिस की प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। एज यू आर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, माने जितना कंसंट्रेशन NaCl आपने जितना ज्यादा ऐड किया हुआ है, आपको ऊपर से प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो आपने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड किया हुआ है वो तो मेरे लिए क्या है एक्चुअली? साइस। तो साइस मतलब कि जितना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है उतना ही उसकी वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव। उतना ही उसकी वैल्यू क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। तो बेटा उसको रोकने के लिए मैं ऊपर से एक पॉजिटिव वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ। वो पॉजिटिव वैल्यू को क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो सॉलिड पोटेंशियल है, ध्यान से सुनना, खतरनाक वाला कंसेप्ट है। ये जो है सॉलिड पोटेंशियल साइज कितना है? 5 ग्राम। ओके, बट वो कैसा होगा? नेगेटिव। वहां से आप अप्लाई क्या कर रहे हो? उसको स्टॉप करने के लिए सेम अमाउंट बट पॉजिटिव। तो माय डियर डॉक्टर्स, ओपी और साइ एस सेम होगा बट इट विल बी माइनस। ये भी अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आ गया। ओपी इज इक्वल टू माइनस साइस और वाइस वर्सा, साइस इज इक्वल टू माइनस ओपी। बट ये नहीं कह सकते क्योंकि ओपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ओपी इज इक्वल टू साइस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये पॉजिटिव +5, ये नेगेटिव -5। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट आपके सामने आ गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट अब समझना बाकी है वो बाकी है प्रेशर पोटेंशियल। ओके, और प्रेशर पोटेंशियल के साथ ही मुझे समझाना पड़ेगा टर्जिडिटी और टर्बो प्रेशर, टर्जिडिटी एंड टर्बो प्रेशर। चलो तो आ जाओ मैदान में, सब लोग समझते हैं अच्छे खासे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये लेक्चर अब 1 2 3 4 बार आराम से देखो, देन नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा अभी तो ये प्रेशर पोटेंशियल में समझा रहा हूँ, बट ये प्रॉपरली अच्छी तरह से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल। ओके, तो सपोज दिस इज अ प्लांट सेल वॉल हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। प्लाज्मोलिसिस इसी के अकॉर्डिंगली हमें समझना पड़ेगा। ओके, ये सेल वॉल हो गई और अंदर की तरफ लेट अस टेक दिस इज, अगर प्लांट सेल है तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा? सेल मेम्ब्रेन आएगी यहाँ पे। ये प्लांट सेल को अपने सराउंडिंग जो सॉल्यूशन है, ऐसा मान के जाते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या है? लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो लेट मी गिव यू वन मोर टर्म, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का नाम क्या आ रहा है यहाँ पे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ सॉल्यूशन तो है, वैक्यूलर सेप है, साइटोप्लाज्म है, वो डिटेलिंग हम प्लाज्मोलिसिस में करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे अंदर की तरफ जो सॉल्यूशन है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज वर्ड क्या आएगा आपके सामने? हाइपोटोनिक, लोअर कंसंट्रेटेड, हायर कंसंट्रेटेड, सेम कंसंट्रेटेड, तो क्या आएगा? आइसोटोनिक। क्या आएगा वहां पे वर्ड? आइसोटोनिक। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या होगा? वी नो दैट, अच्छा यहाँ पे हाइपोटोनिक है तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर, क्योंकि सॉल्यूट्स आर लेस। यहाँ पे सॉल्यूट्स आर मोर, वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंगली उसको उसके पास होना चाहिए क्या? सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड दे आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। इट्स वेरी इजी यार। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आ रहा है। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल ऐसा मान के चलो आप लोग, ऐसा हुआ, ये सिचुएशन क्रिएट हुई। चलो समझो, इसी के अकॉर्डिंगली हम समझते हैं, जब हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं किए थे तो सिचुएशन क्या थी? जब वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड नहीं किए थे तब अंदर की तरफ क्या था हमारे पास? क्या है हमारे पास? हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन माने अंदर की तरफ कंसंट्रेशन कैसा है, ज़्यादा है। जब तक हम वाटर मोलिक्यूल्स वहाँ पे ऐड कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, बोलो, चलो सोचो, फटाफट सोचो। एज वी आर एडिंग मोर एंड मोर वाटर मोलिक्यूल्स, वहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड हियर। ओके, तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, समझो, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो वाटर पोटेंशियल हमारा कंसेप्ट, हाइपरटोनिक माने कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर तो psi has become more negative, and if psi has become negative तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू मुझे जीरो थोड़ी ना मिलेगी, मुझे तो नेगेटिव मिलेगी। सपोज अभी मतलब जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड नहीं किए थे तब जो ये अंदर का सॉल्यूशन है वहां पे वैल्यू है, लेट अस टेक एन एग्जांपल, -20, क्योंकि सॉल्यूट्स मैंने ऐड किए हुए हैं डॉक्टर्स, सॉल्यूट्स मैंने ऐड, क्योंकि हाइपरटोनिक के सॉल्यूट्स आर मोर, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू अभी मुझे कितनी मिली, -20। ध्यान से, हाँ, अच्छा, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है। तो -20 मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है किसकी, वाटर पोटेंशियल की। ओके, वाटर पोटेंशियल, और यही सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास, सॉल्यूट पोटेंशियल। चलो आ जाए, मैं वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूँ, जैसे 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 व्हेनेवर आई एम एडिंग मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स माने वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। अगर वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहा है तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव से ज़्यादा वो क्या होगा, लेस नेगेटिव, माने ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉजिटिव होगी ना, जीरो की तरफ हम जाएंगे। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने शुरू किए, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, वैल्यू बनी -20 से सपोज -18, -16, -14, -20 कैसे हो सकती है, हाँ, -12 एंड -10, इस तरह से हुआ। इनिशियल कंडीशन पे वैल्यू वाटर पोटेंशियल की ये थी, मैंने यहाँ पे प्रेशर की बातें बाद में करते हैं, बट जैसे जैसे मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करे जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि अब आओ मैदान में, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ से यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और इसी प्रेशर को तो क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। टर्जिडिटी का मतलब क्या, दिस, अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर ऐड हुए तो इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगा पता है, ये देखो, अभी ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली ये सेल वॉल मैंने ऐसे ड्रॉ की हुई, अब सेल वॉल कैसे है, थोड़ी सी मैं स्वलन बता रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट स्टेज होगा, ये जो है वो नेक्स्ट स्टेज होगा, आप ऐसा समझ लो। ओके, हाँ, तो पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये रहेगा बेटा, ध्यान से, आराम से, वाटर मॉलिक्यूल्स में ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो है प्रेशर जनरेट हुआ, ये प्रेशर को ही मैं नाम क्या दे रहा हूँ, टर्गर प्रेशर। ये प्रेशर को मैं नाम क्या दे रहा हूँ, टर्गर प्रेशर। एंड इसी को तो हम क्या कहते हैं, बोलो, प्रेशर पोटेंशियल, जो लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको, यस, प्रेशर पोटेंशियल। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, यही जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, तो आप क्या हुआ, इनिशियल ये वैल्यू कैसे थी, -20, अब वैल्यू क्या हो गई, माइनस की माइनस ही है, बट प्रेशर तो यहाँ पे वैल्यू कम हुई ना, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ हम आगे बढ़े, तो यही वैल्यू को हम नाम क्या दे रहे हैं, साई पी। तो साई पी की वैल्यू कब आई, कितनी आई, यहाँ पे हमने कितना ऐड किया हुआ है, -20 से -10 तक कब हम गए, जब हम वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो ड्यू टू दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर इज जनरेटेड, एंड दैट प्रेशर जनरेटेड इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। बट जो वैल्यू बनी उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, तो आपका पॉइंट क्या है, प्रेशर पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट नॉट दैट वाला पॉजिटिव, जीरो के बाद जो 1 2 3 4 5 वाला पॉजिटिव है, नहीं, वो पॉजिटिव नहीं, हम -20 से -10 तरफ जा रहे हैं। तो जो मैंने +10 वहाँ पे ऐड किया, दैट +10 एडेड वैल्यू इज कंसिडर्ड एज क्या आएगा, प्रेशर पोटेंशियल। तो यही प्रेशर पोटेंशियल इज कॉल्ड साई पी, जिसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ टर्गर प्रेशर के साथ। तो माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन हैशटैग इज
turbo pressure is considered as psi p. Tp is equal to psi. Positive value of psi p is known as turbo pressure. Write down. Positive value of turbo pressure is known as psi p. Okay, that is pressure potential. Okay, तो जो हमने बात की आज के लेक्चर में अभी तक, ये पॉइंट खास वाटर पोटेंशियल के रिगार्डिंग हमने बात करी. वाटर पोटेंशियल जिसमें सॉलिड पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, नेचुरल कंडीशन में प्रेशर पोटेंशियल नहीं कंसिडर कर रहे, सो दैट इज वाई क्या होगा, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस हम कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया कि साई एस डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, सॉल्यूट के ऊपर. साई पी, अगर कहीं पे भी साई पी की बातें हो रही है तो आपको किसकी बातें करनी है, सॉल्वेंट की बातें ही करनी है. तो साई एस को आप बातें किसके साथ कर रहे हो, साई एस कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, ओपी, बट ओपी इज इक्वल टू माइनस साई एस. यहाँ पे टीपी इज इक्वल टू साई पी, वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा. ओके, तो टर्म्स खास याद रखो बेटा आपको. वाटर पोटेंशियल, इसमें सॉलिड पोटेंशियल, उसी में प्रेशर पोटेंशियल. सॉलिड पोटेंशियल को हम कंपेयर कर रहे हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल के साथ. ऑस्मोसिस आया तो ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्बो प्रेशर है तो फिर टर्जिडिटी. तो कैसे हम टीपी को साई पी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, साई एस को ओपी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, वो सब ध्यान में रखना है. ओके, सो दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर. तो ये अच्छी तरह से थॉरोली लर्न करो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मोलिसिस एंड बाकी के टॉपिक्स जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे. अच्छी तरह से लेक्चर 2-3 बार देख लो, एनसीईआरटी 3, 4, 5, 6 बार पढ़ लो. ओके, तो लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं बेटा. ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एंड बने रहिए हमारे साथ. ओके, बाय.